Hello friends, welcome back in the Life Science session. So today we will talking about the biomolecules and catalysis. Catalysis. So what is the biomolecules and what is the importance of the biomolecules? So this chapter I have taken from the biochemistry, chapter 1. So what we want to decide or what we want to say that the biomolecules. So someone have the whole organism. If we have a whole organism, so this is the whole organism. If we're talking about this whole organism is composed is what is the composition of this organism? So we have in mind which is the biomolecule. We have a concept or we have a thing regarding the biomolecule. So we have to talking about the biomolecules. So if we're talking about what is the life on earth or what is the nature of organism and what is the constituents of organism, so a biomolecule is an organic molecules. So as you all know friends that what is the organic and what is the inorganic molecule and what is the inorganic molecule. So in this lecture, we have to totally focus on the organic molecule. So our body is composed of is what? Organic molecules that is produced by living organism. If we're talking about the living organism, not only human, but also the simplest cell, but also the simplest cell. And what is the simplest cell in the earth or in the organisms? This is the prokaryotic organism. So what is the simplest cell? Simplest cell is the prokaryotic organism. So our cell, or you can say micro cell, or you can say prokaryotic cell as well as eukaryotic cell, सभी के सभी कब से कंपोज हुए, किससे कंपोज हुआ है? आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होता है आपका उससे बना है. तो बायोमोलिक्यूल्स एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक of the life and perform important function. So if we have the life आपके पास क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा है? आपका प्रोकैरियोटिक हो या फिर कैसा आपका यूकैरियोटिक हो, सबका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है? आपका बायोमोलिक्यूल ही है. More than 25 naturally occurring chemical elements are found in biomolecules. So, according to biochemistry, we have approximate 120 elements. How many elements? 120 elements. Out of which 83 are natural elements. And if we're talking about the importance or beneficial in biomolecule, so out of 83, we have only 25, approximate only 25 elements जो कि क्या है? हिस्सा बन पा रहे आपके बायोलॉजिकल सिस्टम का. बट हम बात करते हैं कि अब जो आपके 25 नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड्स हैं, आपके जो एलिमेंट्स हैं, उनमें देखा जाए तो क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिलेटिवली लो. अब इसकी जब हम बात करते हैं कि जो आपके 25 कंपाउंड्स हैं उनमें क्या हो रहा है कि आपके बायोमोलिक्यूल जो है वो उसका क्या कर रहे हैं? ये हिस्सा बन पा रहे हैं. लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? 25 में से भी क्या हो रहा है? आपके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कौन कौन है वो? आपके कार्बन है, आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फास्फोरस और आपका सल्फर. तो ये जो 6 एलिमेंट्स है ये क्या है? आपके 6 एलिमेंट्स हैं. ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या इनका ऑर्डर रख सकते हो. ये 6 एलिमेंट्स है, ये मोस्टली क्या है? आपके बायोमोलिक्यूल का क्या है? ये अहम हिस्सा है. या फिर क्या कह रहे हैं? एक्टिवली यदि कोई पार्टिसिपेट कर रहा है बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में, बायोमोलिक्यूल को कंसिस्ट करने में, उनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, तो वो कौन है? ये 6 मॉलिक्यूल्स है. ये 6 एलिमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका? बायोमोलिक्यूल्स का.
द फोर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है धरती पर, हमारे इस अर्थ पर, उन सब में क्या होगा, 99% जो होता है बायोमास कौन क्रिएट कर रहा है आपका, ये 6 एलिमेंट जो है वो क्रिएट करने वाले, बनाने वाले हैं। In terms of percentage of total number of atom are hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon, which together make up over 99% of mass of most cells. तो बायोमोलिक्यूल क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे, हम जो है, हमारा जो मैटर है, जितनी भी चीजें हमारे सराउंडिंग में है, वो सब क्या है, बायोमोलिक्यूल जो है, उससे हम सब क्या है, हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का वो बना है। तो देखा जाए तो क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है उसका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कौन है, आपका बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल जो है वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है। 25 जो है नेचुरल एलिमेंट्स है, लेकिन फिर भी उसमें से सिर्फ और सिर्फ कितने, 25 में से 6 जो है एलिमेंट्स वो क्या हो रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से बायोमोलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट हैं, कहाँ पर, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम जहां पर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, कौन रह रहा है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर चाहे वो आपका क्या हो, आपका प्लांट हो या फिर आपका एनिमल हो, फंगाई हो, फंगस हो, आपका जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग, तो सब में क्या होगा, वो बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से प्रेजेंट होने हैं। यदि आप बात करते हो किसके, स्मॉल मॉलिक्यूल, तो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे आपका हो गया शुगर। शुगर जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। जब ये क्या है आपका मोनोमर फॉर्म है, मोनोमर मीन सिंगल, सिंगल फॉर्म है, इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति क्या है आपका, ये इंडिविजुअल है। और यही जब व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे के हाथ पकड़ के क्या करता है, साथ में काम करता है, तो यही इंडिविजुअल क्या करता है आपका, क्या कर रहा है, एक ग्रुप बना लेता है, एक ग्रुप बना लेते हैं, हम सिंपल मीनिंग में समझते हैं। तो शुगर जो है वो क्या है, एक मोनोमर है। यही जब क्या करेगा, जब पॉलीसेकेराइड का फॉर्म लेता है शुगर जो होता है, जब मतलब क्या होता है कि एक शुगर मॉलिक्यूल मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल से क्या होता है, विद द कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड जो होता है वो फॉर्मेशन होता है। सिमिलर मैनर में क्या होता है, फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फैट्स और लिपिड्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। अमाइनो एसिड से जो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और न्यूक्लियोटाइड से क्या बना रहे हैं आप, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से हमारा मतलब है डीएनए या फिर आरएनए। मोस्ट प्रीडोमिनेंट जो जेनेटिक मटेरियल होता है सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में, वो डीएनए ही होता है, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। जैसे कि जो वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप क्या बता रहे हो, बायोमॉलिक्यूल्स। बायो क्यों, बायो मीन्स होता है आपका लाइफ, जो कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है आपका प्रेजेंट है। ऐसे मॉलिक्यूल की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, हमारे पास क्या होता है, आपका एटम होता है। एटम जो होता है वो क्या है, आपका सिंपलेस्ट पार्टिकल है। एटम, मल्टीपल एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक एलिमेंट को फॉर्म करते हैं। और यही एलिमेंट क्या होता है, एक मैटर को फॉर्म करता है, क्या करता है, एक मैटर को फॉर्म करता है। और जब ये एटम, जब एक एटम और दूसरा एटम जब आपस में क्या करें, बॉन्डिंग के थ्रू क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तब उसको आप क्या बता रहे हो, मॉलिक्यूल बना बता रहे हो। मॉलिक्यूल में 2 से अधिक क्या हो सकते हैं, 2 और मोर देन 3 और मोर देन 2 क्या हो सकता है, इनमें केमिकल बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, तब वो बायोमोलिक्यूल का क्या बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन, अभी मैंने O2 लिखा है, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है या फिर एटम है, तो हमारे पास आंसर होगा कि ये मॉलिक्यूल है। और मैं जब इस तरीके से लिखती हूँ, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, O16, तो ये क्या है आपका एटम है, ये क्या है आपका एटम है।
इस तरीके से क्या करेंगे आप, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, इसने आपस में क्या कर लिया है, बॉन्डिंग के थ्रू क्या किया है, आपस में क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है। बॉन्ड बनाने के बाद क्या बना है, ये बन गया है आपका मॉलिक्यूल। तो इसी मैनर में क्या करते हैं आपके बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं वो भी वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड भी क्या है, एक बायो मॉलिक्यूल है और कैसा है, ये ऑर्गेनिक। जितने भी हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे वो सब कैसे होंगे, ऑर्गेनिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे उनका नेचर, ऑर्गेनिक नेचर की। अब बात करें क्या, अमाइनो एसिड और प्रोटीन की। अमाइनो एसिड क्या है कि जो अमाइनो एसिड होता है, यदि आपको अमाइनो एसिड बनाना है, आपको प्रोटीन फॉर्म करना है, तो कम से कम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है आपका सी अल्फा है, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन है। इसको क्या बोलोगे आप, अल्फा कार्बन है ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपका अमीनो ग्रुप है। तो अमाइनो एसिड होने के लिए कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, आपका अमीनो ग्रुप तो प्रेजेंट होना चाहिए और ये आपका आर है या फिर क्या कह सकते हैं आर चेन या फिर साइड चेन है। तो ये तो क्या है एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का वो प्रेजेंट, ये क्या है आपका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। यदि मैं इस आर की जगह क्या लिख देती हूँ, आर की जगह मैंने एच लिख दिया है, आर की जगह क्या लिख दिया है, तो ये किसका हो जाएगा, एक टिपिकल जो आपका स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड जो होता है ग्लाइसिन, उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो इसी मैनर में आपको क्या करना है, चेंजेस जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, आपके आर चेन में जो होंगे चेंजेस होंगे। आर चेन जो होती है यहाँ पर। तो इससे क्या होते हैं, इसको आप क्या कहोगे, अमाइनो एसिड बोलोगे। जहां जहां भी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे आप, अमाइनो एसिड बोलोगे। तो ये क्या हो गया आपका, आपने देखा कि अमाइनो एसिड से आप क्या बना रहे हो, आपका पेप्टाइड बना रहे हो, आपका क्या बना रहे हो, पेप्टाइड। और ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड बनके क्या बनाएंगे, आपका पॉलीपेप्टाइड मिलकर के क्या बनाएंगे, आपके प्रोटीन को फॉर्म करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोटीन को फॉर्म करेंगे। तो अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनने की क्या कहानी होती है, अमाइनो एसिड से पेप्टाइड कैसे बनता है। अमाइनो एसिड से जो पेप्टाइड की यदि हम बात करते हैं, तो पेप्टाइड इज अ बॉन्ड। तो इसको जब हम क्या देखेंगे, अभी इसका जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तब उसमें हम पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है उसकी कहानी देखेंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि अमाइनो एसिड कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है और प्रोटीन कैसे बनने वाला है। अब आप किसकी बात करते हो कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्ट एज एसिड और बेस की तरह काम कर सकते हैं। एसिड से हमारा मतलब क्या है, जिसके पास क्या हो, H प्लस जो होता है वो डोनेट करने के लिए हो। जो भी H प्लस को डोनेट करता है वो एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है और जो भी H प्लस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप, बेस कहते हो। तो मान लो ये आपके पास क्या है, कोई हाइपोथेटिकल क्या है, आपने ले लिया एसिड, आपने क्या ले लिया, हाइपोथेटिकल एसिड ले लिया है। अब हम जानते हैं इसके पास क्या है, एच है। तो जब यदि क्या करता है, डिसोसिएट यदि होता है मान लो, तो ये आपका एच प्लस अलग हो जाएगा, आपका बेस अलग हो जाएगा। तो ये क्या है आपका एसिड है, ये क्या है इसका एसिड है। ये क्या था आपका हाइपोथेटिकल एसिड था और ये क्या है इसका बेस है। तो बेस जो होता है ये एसिड नहीं है, ये क्या है आपका H प्लस जो है फ्री फॉर्म में है। तो हमने इससे क्या कर लिया है, आपके H को हटा दिया है। मतलब इसके पास क्या था, H प्लस था, H प्लस को उसने डोनेट किया एसिड ने। किसको डोनेट किया है, बेस। किसको डोनेट किया है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। लोन पेयर जिसके पास होते हैं वो क्या होते हैं, उसके पास बेसिक कैपेसिटी होती, बेसिक नेचर होता है उसका। मतलब जो H प्लस को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर सके उसको बेस कहा जाएगा और सिंपली, और जो H प्लस को डोनेट कर सके उसको एसिड कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि एसिड और बेस जो होता है उसकी तरह अमाइनो एसिड जो होता है वो एक्ट करता है। कैसे कि मान लो आपका इंटरमीडिएट क्या है, आपका पीएच है। यहाँ पे पीएच और पीआई, तो पीआई क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उसको हम पीआई कहते हैं। और पीआई का मतलब है कि वो पीएच जहां पर क्या हो, आपका जो नेट चार्ज होता है वो कैसा हो, यहाँ पर जीरो चार्ज हो। मतलब नेट चार्ज कैसा होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या होता है, जीरो होता है। जब आपका नेट चार्ज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का जीरो हो रहा आपके पीएच के बराबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका देखो क्या है, आपका अमीनो ग्रुप है।
कैसा है ये, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। और यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक कैसा है आपका, डी प्रोटोनेटेड, मतलब आपका प्लस और माइनस जब कैंसिल होता है तो क्या आता है आपके पास में, जीरो आता है। जीरो, प्लस और माइनस को आप जब एक दूसरे से क्रॉस हटाते हैं उसको, तो आपके पास क्या आता है, जीरो आता है, कैंसिल करते हैं तो। अब आप क्या कर रहे हो, ये आपका क्या था, इंटरमीडिएट पीएच में आप रखे। जब आपने लो पीएच दिया, लो पीएच से हमारा मतलब इंटरमीडिएट का मतलब था यहाँ पे 7 पीएच पर मान लो, है ना, आपका फिजियोलॉजिकल जो पीएच होता है, आपने लो पीएच कंडीशन दे दी, मतलब लेस देन 7 है, तो आपका पीएच कम, पीएच क्या हो गया, कम हो गया, किससे, आपके पीआई से। तो उस समय जब क्या होगा, पीएच जब आपका ज्यादा है, लो पीएच है, लो पीएच का मतलब होता है आपका H प्लस कंसंट्रेशन क्या है, कैसा होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। लो पीएच से मतलब है हमारा, आप सब लोग जानते हैं कि पीएच और H प्लस में क्या होता है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लो पीएच है मतलब क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन आपका ज्यादा है। तो अभी यहाँ देखेंगे आपका कि आपका अमीनो ग्रुप भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में, और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो जो है वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, वो भी कैसा है यहाँ पर, प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। तो उसको आप क्या बोलोगे, कैसा है, ये दोनों ही क्या है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। अमीनो तो ऑलरेडी प्रोटोनेटेड फॉर्म में था ही, यहाँ पर क्या था आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। जब वहीं आप दूसरी ओर देखो कि जब आपने पीएच क्या कर दिया है, आपने बढ़ा दिया, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन आपने कम कर दिया है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका अमीनो ग्रुप जो है वो डी प्रोटोनेटेड है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो भी डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, मतलब आपका जो पीएच है वो पीआई से क्या है, ज्यादा है। तो आप किसको एसिड बोलोगे और किसको बेस बोलोगे, लो पीएच का मतलब होता है ये क्या है, आपका एसिड है, और हाई पीएच का मतलब क्या है, ये आपकी बेस है, इसके पास क्या है, बेस है। तो the acid base behavior of an amino acid in solution at low pH, the positively charged species predominate। जब आप लो pH की बात करते हो तो क्या होता है, आपके पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और वहीं आप जब हाई pH की बात करो तो क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और जब पीआई की बात करते हो तो क्या है, आपका न्यूट्रल चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हमारा क्या मतलब है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम किसका किसको बता सकते हैं, हम शुगर कमोडिटीज, हम जितने भी बायोमोलिक्यूल हैं, जितने भी क्या है हमारे पास में बायो मॉलिक्यूल्स है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। तो यदि हमको ये देखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, उसमें से क्या होता है, उस बायोमोलिक्यूल्स को पास करवाया जाता है कि देखो ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो जितने अमीनो एसिड है हमारे पास क्या है, 20 स्टैंडर्ड, और अभी रिसेंटली क्या हो 1 और 2, 21 और 22, तो सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन जो है वो भी ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। लेकिन मोस्ट प्रिडोमिनेंटली देखा जाए तो 20 जो होते हैं वही स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो दो जो है रिसेंट डिस्कवर हुए, और कैसे है तो ये ऐसा बोल सकते हैं इनको कि हमेशा के लिए टिपिकल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वहां पे इनको देखा नहीं जाता है, किसको, पायरोलाइसिन और सेलेनोसिस्टीन को। तो जो ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड है वो कैसे है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव से हमारा मतलब क्या, हम देखेंगे अभी। तो दे रोटेट in the plane polarized light, optically active molecules contain chiral carbon। अब chiral carbon क्या होता है, a tetrahedral carbon atom with 4 different constituent are said to be chiral। all amino acid except glycine have chiral carbon, hence they are optically active। हमने एक जगह कहीं ग्लाइसिन का क्या करा था, स्ट्रक्चर, ये ग्लाइसिन का। जब कायरल कार्बन की बात करते हो तो ये आपका जो सी अल्फा होता है इसको आप कायरल कार्बन कह सकते हो, लेकिन ग्लाइसिन जो है कायरल नहीं है। मान लो कि क्या है आपका ये, यहाँ पर H की जगह कुछ और मान लो, बात मान लो H की जगह CH3 आ गया है, CH3 ग्रुप आ गया, मीन्स फिनाइल एलेनिन आ गया। तो फिनाइल एलेनिन क्या हो गया आपका, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से टेट्राहाइड्रल कंपोजिशन होना चाहिए, इसके चारों ग्रुप 1 2 3 और 4, ये चारों ग्रुप जो होते हैं इसके ये क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे, कायरल कार्बन बोलोगे। ग्लाइसिन में क्या होता है, एक और H जो होता है प्रेजेंट होता है इसके R चेन में, लेकिन फिनाइल एलेनिन में क्या है आपका CH3 प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया आपका कायरल कार्बन जो है वो उसकी आप कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। तो
all amino acid except glycine have chiral carbon and hence they are optically active. तो जितने भी अमीनो एसिड है वो कैसे आपके एक्टिव, कैसे है ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं. अब ऑप्टिकल होने से क्या मतलब है कि मान लो आपके पास क्या है, कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसको एक पोलराइजर होता है जिससे आप क्या करते हो, उस लाइट में से उसको क्या करवाओगे, आप उस एक्टिव कंपाउंड को क्या करवाओगे, पास करवाते हो. तो मान लो उसका क्या है, इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, अभी मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है उसमें से गुजरता है तो उसका जो ऑप्टिकली एक्टिव जो नेचर वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. मींस अभी आप देखो इस तरीके से वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. वहीं फिर उसने क्या हो गया, इस तरीके से रोटेशन शो कर दिया. मतलब ये कैसा है, ये ऑप्टिकली कैसा है, ये ऑप्टिकली ये एक्टिव कंपाउंड कहा जाए. मतलब जब उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं रोटेशन में, तब क्या है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है. और इनएक्टिव कौन है, आपका ग्लाइसिन है. बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. अब यहाँ पर इन्होंने इनएक्टिव का भी एग्जांपल दे दिया कि मान लो आपका ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन है ये, इस तरीके से आपने क्या करा, उसको लाइट में से पास करवाया, फिर आपका जो देखो आप यहाँ का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो चेंज नहीं हुआ है. मतलब चेंज नहीं हुआ, मतलब जो एज इट इज है जैसा उसको पास करवाया गया था उस तरीके से, तो वो क्या है, आपका इनएक्टिव है ऑप्टिकली. और जो ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव किसके बेस पे देखा जाता है, कायरलिटी के बेस पे. जिनमें क्या होगा, कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वो कैसे होंगे, आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे. और जिनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे. तो ये तो हो गई आपकी किसकी बात, कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं, जो मोस्ट डोमिनेंट है वो कौन कौन से हैं, फिर आप उन्हीं के डेरिवेटिव्स देखते हो. और अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड क्यों एसिड और बेस की तरह काम कर पाता है, कब अमीनो एसिड पर प्लस चार्ज होगा, कब अमीनो एसिड न्यूट्रल होगा, और कब उस पर क्या होगा, आपका जीरो चार्ज होगा. और क्या आपका पीआई है, पीआई और पीएच में क्या रिलेशन है, पीएच और आपके एच प्लस में क्या रिलेशन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आप देखो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो अमीनो एसिड की किस किस पर लागू होती है, कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन नहीं है. एक्सेप्शन आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं. तो फिलहाल के लिए सेक्शन में इतना ही. आगे हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.